Hello friends, so let's discuss the some question answer session. Okay, in human reproduction. Okay, so the first, nothing but the largest germ cell in the seminiferous tubule is primary spermatocytes. Okay, you all know very well seminiferous tubules में स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है. ओके, स्पर्म फॉर्मेशन की जहाँ पे प्रोसेस होती है. ओके, ड्यूरिंग इन दैट पर्टिकुलर seminiferous tubule the largest germ cell, okay, that is called as a primary spermatocytes. Okay, still जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, ओके, वहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनता है, बाद में स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है. ओके, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. ओके, स्पर्मियोजेनेसिस. तो अल्टीमेटली प्रोसेस बताने का यहाँ पे मेरा कोई एम वगैरह नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा था कि जो जितने भी ये नंबर ऑफ जो सेल बन रहे हैं ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, आउट ऑफ दिस नंबर ऑफ सेल, ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द लार्जेस्ट जर्म सेल. ओके, इन आवर स्पर्मेटोजेनेसिस के काम में. Secondary oocytes completes its second meiotic division soon after fertilization. Okay, you all know very well fertilization. As soon as fertilization is done, okay, as particular sperm is mated with the particular ovum, then secondary meiotic division. Okay, secondary meiotic. You can say the meiosis 2 or second meiotic division of oocyte get completed. Okay, as soon as the fertilization is done. Okay, usual period of viability of sperm after ejaculation is 48 hour only. Okay, 48 hour, in some book written 72 hour also. Okay, so 2 to 3 day is the viability period of a sperm. Okay, as men ejaculate their sperm into the vagina of female. Okay, so ultimately that viability, the remain, or you can say that the sperm will alive till 48 hour of ejaculation. Okay, still there are number of books they written the 72 hour. Okay, but you can consider the 2 to 3 time. Okay, 2 to 3 day time period. Okay, in that particular time, okay, the sperm may alive. Okay, the usual period of viability of sperm after ejaculation is 48 hour. Okay, most appropriate answer is 48 hour, but maybe service up to the 4 days in the female genital tract. As I said, ये 4 डे जो है यहाँ पे इट इज रेयरली. ओके, रेयरली 40 डे स्पर्म एक अलाइव होता है, बट यहाँ पे ऐसा बोला गया है, तो यू कैन कंसिडर इट, बट यू हैव टू कंसिडर द 48 आवर इज द वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म. ओके, usual period of viability of an unfertilized secondary oocyte is 24 hour. Okay, so by understanding this particular knowledge, okay, by understanding the viability time period of a particular sperm or ovum, you can manage your you can manage your particular pregnancy plan. Okay, so ultimately as soon as ovulation is done, okay, तो अगर स्पर्म एज सुन एज अगर ओव्यूलेशन होता है और पर्टिकुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर नहीं हुआ है, ओके, तो मेन कैन डू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन वुमेन. ओके, इन पर्टिकुलर फॉर टू 1 to 3 डे, विद इन 1 to 3 डे आफ्टर द ओव्यूलेशन. ओके, अदरवाइज जो ओवम रहेगा वो 24 आवर के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो अलाइव नहीं रहेगा. ओके, तो अल्टीमेटली यूजुअल पीरियड और viability of the particular unfertilized secondary oocyte is only for 24 आवर. स्टिल देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पर्म में 72 आवर लिखा हुआ है, इन दैट सेम वे कहीं कहीं 48 आवर भी लिखा हुआ है. ओके, तो 48 आवर या 72 आवर इज द वायबिलिटी टाइम पीरियड ऑफ स्पर्म, एंड 24 आवर टू 48 आवर इज द वायबिलिटी पीरियड ऑफ द अनफर्टिलाइज सेकेंडरी oocytes. ओके, तो सेकेंडरी oocytes बोलो या फिर आप मैच्योर ओवम बोलो. ओके, सेकेंडरी oocytes अनफर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte क्यों बोला है, क्योंकि अल्टीमेटली सेकेंडरी oocyte से जो मैच्योर ओवम है वो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है. ओके, तो ये पर्टिकुलरली एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर एक बायोलॉजी स्टूडेंट को ही मालूम होता है. अदरवाइज हम क्या बोलते हैं कि ओवम रिलीज हुआ है. ओके, अनफर्टिलाइज ओवम, उसका वायबिलिटी जो पीरियड होगा दैट इज नथिंग बट आवर 24 आवर. ओके, 3 oocytes बैरियर होते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग द penetration of a sperm, okay, with a particular ovum. Okay, so ultimately there are 3 barrier. Okay, they prevents the penetration of a particular sperm into the ovum. Okay, that 3 barrier are corona radiata, zona pellucida layer, okay, and vitelline membrane. Okay, that is also called as a fertilization membrane. Okay, so corona radiata, these are the connective tissues, they get cancelled by our particular hyaluronidase enzymes, okay, which is secreted by our sperm. Okay, as soon as sperm releases the hyaluronidase enzyme, okay, the corona radiata cell get destroyed. Okay,
Zona pellucida get destroyed by our acrosome reaction. Okay, they releases the acrosine, they releases the protein digestion enzymes which is present over the zona pellucida. Okay, which is present over the zona pellucida layer, that is digested by our the protein digesting enzyme which is secreted by our acrosome. Okay, which present over the head of the sperm. Okay, vitelline membrane again, as corona radiata cell get destroyed as zona pellucida get particularly penetrated. Okay, get hold. Okay, after that vitelline membrane comes. Okay, and vitelline membrane easily pushes or easily give permission to penetrate the sperm into the ovum. Okay, number of spermatozoa formed from one primary spermatocytes is 4. Okay, number of secondary oocytes formed from one primary oocyte is only 1. Okay, there is a reason why from primary spermatocytes there are 4 sperm and why there are secondary oocytes. Once again we will repeat the same question. Okay, number of spermatozoa formed from one spermatocyte is 4. Okay, यानी कि number of sperm from one primary spermatocyte is 4. Okay, and number of secondary oocytes formed from one primary oocyte. यहाँ पे आप क्वेश्चन को यू कैन मैनेज योर क्वेश्चन, बिकॉज मैंने आपको बताया सेकेंडरी ओसाइट बोलो या फिर एक ओवम बोलो, क्योंकि ओवम या सेकेंडरी ओसाइट्स उसका जो म्योटिक डिवीजन है या फिर जो कन्वर्जन है, ओके, वो होगा कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्पर्म मीट विद द ओवम, देन ओनली द सेकेंडरी oocytes will turn into the mature ovum. Until and unless, okay, there is no fertilization, no secondary oocyte का maturation. Okay, तो number of oocytes is formed from one primary oocyte is only 1. इसका एक रीज़न ये भी है कि प्राइमरी जो oocytes है, ओके, तो फ्रॉम म्योटिक डिवीजन के ड्यूरिंग होता है क्या, oogenesis के आपने प्रोसेस वगैरह देखा होगा. ओके, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो oogenesis जो होता है, जब एक सेकेंडरी oocyte जो बनता है, ओके, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, ओके, यू हैव सीन दैट oogenesis. ओके, तो वहाँ पे होता है कि म्योटिक डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन दोनों होता है. ओके, तो प्राइमरी oocytes इट टर्न इनटू द सेकेंडरी oocytes. ओके, तो ये पर्टिकुलर जो डिवीजन है इनको हम क्या बोलते हैं, म्योटिक डिवीजन. ओके, म्योटिक 1 बोलते हैं. ओके, म्योटिक इज ए रिडक्शनल डिवीजन. ओके, एंड आउट ऑफ दैट रिडक्शनल डिवीजन जो हम म्योटिक डिवीजन को बोल रहे हैं, म्योटिक 1 इज ओनली रिडक्शनल डिवीजन एंड म्योटिक 2 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है. वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, वो मेंटेन रहते हैं. तो अल्टीमेटली म्योटिक डिवीजन 1 या फिर म्योटिक डिवीजन 2 दोनों की केस में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना, उनका पर्टिकुलर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म यू ऑल नो कि बोलते हैं ना कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो और साइटोप्लाज्म, ओके, वो भी दोनों क्रोमोसोम नंबर एंड साइटोप्लाज्म दोनों ही अल्टीमेटली हमारे हाफ में डिवाइडेड होते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर दैट एक 2 सेल सेपरेट आउट बनते हैं. बट ड्यूरिंग द oogenesis वहाँ पे साइटोप्लाज्म का प्रॉपर तरीके से, ये नॉट प्रॉपर नहीं बोल सकते, वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है, ओके, वो अनइक्वल रहता है. ओके, देयर इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड दैट्स वाई एक सेल ऐसा रहेगा जिसके पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा और एक जिसके पास बहुत कम होगा. स्टिल जो उनका क्रोमोसोम नंबर होता है वो दोनों सेल में मतलब रिमेन रहेंगे दोनों में. मतलब अगर म्योटिक डिवीजन 1 हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का अगर म्योटिक डिवीजन 1 हुआ है, दे विल फॉर्म द सेकेंडरी oocytes. ओके, सेकेंडरी oocytes अल्टीमेटली कैसे बनेगा, प्राइमरी oocyte से 2 सेल बनने वाला है, क्योंकि म्योटिक डिवीजन 1 हो रहा है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 क्रोमोसोम थे. अभी जो सेकेंडरी oocyte बनेगा उसमें कितने होंगे क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम एंड 23 क्रोमोसोम. ओके, दोनों सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे. बट जो अल्टीमेटली जो 2 सेल बने हुए हैं वो दोनों सेल अल्टीमेटली मॉर्फोजेनिकली वो दोनों सेम नहीं होंगे. ओके, उनका साइटोप्लाज्म जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल होता है. ओके, एक सेल बिगर होगा, एक सेल बहुत ही छोटा होता है. ओके, एंड बाद में जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है तो सेकेंडरी oocyte से अल्टीमेटली एक मैच्योर ओवम बनता है और वहाँ पे भी अगेन अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. ओके, दैट्स वाई एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है. ओके,
then a person is likely to be sterile if a number of healthy sperm per ml is less than 10 million. Okay, you all know very well कि during the per ejaculation of semen into the vagina 3 to 4 ml या फिर 3 to 6 ml एक particular man, okay, they can ejaculate their sperm into the vagina. Okay, only 3 to 6 ml. Okay, these 3 to 6 ml of semen, okay, out of that जो अल्टीमेटली 1 ml ऑफ सीमेन में देर आर अप्रोक्सीमेटली 100 million ऑफ स्पर्म आर देयर. ओके, 100 million ऑफ स्पर्म प्रेजेंट इन द 1 ml ऑफ द सीमेन, एंड नॉर्मली 3 to 6 ml ऑफ सीमेन इज एजाकुलेटेड इन द वजाइना. ओके, यू कैन इमेजिन. ओके, तो इफ पर्सन और पर्टिकुलर मैन ejaculates their semen into the vagina. Okay, and जो अल्टीमेटली उसका जो सीमेन है वो बहुत ही लाइटली है. ओके, उसमें वाटरी कंटेंट ज़्यादा है. ओके, एंड इफ़ वी माइक्रोस्कोपिकली अगर हम एग्जामाइन करेंगे तो अगर हमें मिलता है कि उसके 1 ml में, ओके, यानी कि पर ml में अगर 100 million उससे अगर स्पर्म मिलते हैं तो उसको इनफर्टिलिटी के चांसेस में या फिर इनफर्टिलिटी के केस में वो आता है. ओके, number of ovarian follicle that undergo ovulation during entire reproductive life of women, okay, that is nothing but 400 to 500. okay, तो 400 to 500 अल्टीमेटली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहते हैं. नंबर ऑफ ओवेरियन follicle present at puberty, there are 14,000 follicles present during the puberty, and in each month, okay, in each month of the puberty, okay, as she attained a puberty stage or puberty age, okay, each month of their menstrual cycle, okay, a follicle out of this 14,000, a follicle get mature into the Graafian follicle. Okay, number of primary oocytes that get matured and complete their first meiotic division before ovulation is 5 to 30. Okay, 5 to 30 primary oocytes get matured and complete their first meiotic division, and out of this, okay, out of this 5 to 30 completed meiotic division of primary oocyte, okay, only one ultimately turn into the Graafian follicle. Okay, total period required for the process of spermatogenesis is 60 days. Okay, and state of secondary oocytes at the time of ovulation in the state of metaphase of the secondary meiotic division. Okay, the secondary oocytes is arrested at the phase of metaphase of second meiotic division. Okay, still कहीं मेटा प्रोफेज 1 प्रोफेज लिखा हुआ है. ओके, तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट बुक है, ओके, ये एम्ब्रियोलॉजी की टेक्स्ट बुक है. ओके, विश्रम सिंह करके एक पर्टिकुलर ऑथर है. ओके, तो उन्होंने ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक लिखा है. तो ये एडवांस बुक है, तो जो भी डाटा या फिर जो भी यहाँ पे नंबर्स वगैरह जो बताए गए हैं, ओके, वो दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली और एक्यूरेट है. ओके, वो 100% एक्यूरेट है. ओके, तो स्टेट ऑफ सेकेंडरी ओवरसाइट एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन वो मेटाफेज के फेज में अरेस्टेड होते हैं. अगर कोई नीट वगैरह के प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, ओके, तो दे विल फॉलो देयर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली. ओके, दे डोंट फॉलो एनी अदर टेक्स्ट बुक. ओके, रेफरेंस टेक्स्ट बुक उनको फॉलो वगैरह नहीं करना रहता है. दे हैव टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ओके, दैट इज गिवन बाय आवर सीबीएसई बोर्ड. ओके, देन क्लिनिकल प्रॉब्लम में हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस एंड अगेन आंसर की बात करेंगे. ओके, ड्यूरिंग द इवेल्यूशन ऑफ मेन फर्टिलिटी एंड एनालिसिस ऑफ सीमेन इज मेड वाई. ओके, तो मेड जो इनफर्टिलिटी को जो हम डायग्नोस करते हैं या फिर मेल फर्टिलिटी जो होती है, ओके, उसको पता करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायर होती है ड्यूरिंग द सीमेन एनालिसिस. ओके, तो ये देखिए, द एनालिसिस ऑफ सीमेन इज डन टू काउंट द the analysis of semen is done to count the number of sperm per ml of semen. Okay, as I said कि पर्टिकुलरली 2 to या फिर 3 to 6 ml एक पर्टिकुलरली मेन क्या करता है, एजाकुलेट करता है इनटू द वजाइना. ओके, इतना ml सीमेन एजाकुलेट करता है वजाइना के अंदर, एंड पर ml में कितना स्पर्म है उसको काउंट करने की सीमेन एनालिसिस वहाँ पे रोल प्ले करता है. टू सी द मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मलिटी, ओके, ऑफ अ स्पर्म, उसका जो हेड, नेक एंड जो टेल है, ओके, वो प्रॉपर है या नहीं है. ओके, वो प्रॉपर शेप के है या नहीं है. अप्रॉक्सीमेटली वहाँ मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ में बताया था कि देर आर 30 माइक्रोमीटर या फिर 10 to 30 माइक्रोमीटर ये जो साइज़ है स्पर्म की होनी चाहिए. ओके, एंड इफ़
अगर ये साइज़ अगर नहीं रहती है, ओके, अगर ये शॉर्टन रहती है, अगर साइज़ 60 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर के बीच में रहती है या फिर इसके रेंज में रहता है, तो स्पर्म विल बी कंसिडर एज अ लो साइज या फिर लेस साइज, ओके, उसकी जो साइज़ होगी दैट विल बी कंसिडर एज अ लो, ओके, एंड दैट्स वाई मॉर्फोलॉजिकली जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है इन्हीं को हम कंसिडर करते हैं। तो टू सी द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म वी आर परफॉर्मिंग द सीमेन एनालिसिस, ओके। द नॉलेज ऑफ द अबव फैक्ट इज एसेंशियल टू द क्लिनिशियन बिकॉज अ मैन विथ लेस देन 100 मिलियन स्पर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दे विल कम अंडर इन द कैटेगरी ऑफ द इनफर्टाइल और इनफर्टिलिटी केस, ओके। तो स्पेशली व्हेन स्पेसिमेन कंटेन इमोटाइल एंड एबनॉर्मल सेल, ओके, लेस देन 10 मिलियन ऑफ स्पर्म पर एम एल ऑफ सीमेन, ओके, उसके अंदर अगर पर एम एल ऑफ सीमेन में अगर 10 मिलियन ऑफ स्पर्म रहते हैं तो इज लाइकली टू बी स्टेराइल, ओके, स्पेशली व्हेन स्पेसिमेन कंटेन इमोटाइल एंड एबनॉर्मल सेल, ओके। तो अलॉन्ग विद दैट इमोटाइल एंड एबनॉर्मलिटी अगर आती है इस 10 मिलियन ऑफ स्पर्म जो कि पर एम एल में है, ओके, पर एम एल ऑफ सीमेन में है, दैट विल बी एब्सोल्युटली कंसिडर एज अ स्टेराइल, ओके, दैट विल बी कंसिडर एज अ इनफर्टिलिटी, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ बेबी ऑफ डिजायर्ड सेक्स, ओके। तो एज पर आवर डिज़ायर्ड अगर हम मैनेज करेंगे, ओके, तो वी कैन प्रोड्यूस, ओके, वी कैन प्रोड्यूस द बेबी विथ आवर डिज़ायर्ड सेक्स, ओके। तो मेल एंड फीमेल जो बेबीज होते हैं वी कैन इन सम टेक्स्ट बुक दे आर रेफरिंग और दे आर मेंशन्ड by which method we can particularly possible or by which method we can अरेंज आवर द डिजायर्ड सेक्स, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ मेथड वगैरह बताए हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ बेबी ऑफ डिजायर्ड सेक्स, यानी कि अपने जो वॉलेंट्री जो है अल्टीमेटली अपने डिज़ायर के अनुसार मेल एंड जो फीमेल जो चाइल्ड है, ओके, उसको किस तरह से गेन करना है, दैट इज अ कम अंडर इन द डिजायर्ड सेक्स कैटेगरी, ओके। तो एज पर आवर एलोपैथिक, एज पर आवर मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑल्सो एस इट इज़ पॉसिबल नाउ डेज, ओके। तो अल्टीमेटली यू ऑल नो वेरी वेल कि जो मेल होता है, ओके, एक जो मेल है वो अल्टीमेटली 2 टाइप ऑफ स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, एक जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और जिसके अंदर एक वाई क्रोमोसोम होगा, ओके। तो जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है उसको गाइनोस्पर्म बोलते हैं और जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है उसको हम एंड्रोस्पर्म बोलते हैं, ओके। अगर एक और ये भी आप जानते हो क्योंकि ओवम जो होता है वो एक ही काइंड ऑफ पर्टिकुलरली सेक्स सेल को प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, ओके। तो अल्टीमेटली कोई भी सेल हो, कोई भी स्पर्म हो या फिर ओवम हो, दोनों में ही एक एक सेक्स क्रोमोसोम होता है और वो एक सेक्स क्रोमोसोम फिक्स होता है एक पर्टिकुलरली फीमेल में। मेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इन देयर सोमेटिक फेस एंड दैट्स वाई जब उनका डिवीजन होता है ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस तो एक्स एक सेल में आता है, वाई एक सेल में आता है, ओके, एंड दैट्स वाई वेरिएबल सेक्स सेल्स बनते हैं इन मेल, दैट्स वाई गाइनोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म दे आर कॉल्ड एज, ओके। तो अल्टीमेटली ये देखिए व्हेन एन ओवम हैविंग एक्स क्रोमोसोम, ओके, फिक्स रहता है, उनमें एक्स क्रोमोसोम फिक्स ही रहता है। तो व्हेन एन ओवम इज फर्टिलाइज वाई बियरिंग स्पर्म देन ऑफस्प्रिंग विल बी बेबी बॉय, ओके। एंड ओवम अगर फर्टिलाइज करेगा एक्स स्पर्म से यानी कि गाइनोस्पर्म से देन द बेबी विल बी गर्ल, ओके। तो ये जो कुछ टेक्निक्स वगैरह बताए गए हैं इनसे देर पॉसिबल टू हैव अ बेबी विथ आवर डिजायर्ड सेक्स, ओके। तो डिफरेंस इन स्विमिंग एबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई बियरिंग स्पर्म, ओके। तो दे हैव मतलब ये जो मेथड वगैरह जो बताए गए हैं ये इनका जो चांसेस है जो डिजायर्ड सेक्स के लिए जो कपल जो चूज़ करेंगे, ओके, तो दैट इज़ नॉट 100%, ओके, देर इज़ अ सम पॉसिबिलिटी मे कम, ओके। ये जो मेथड वगैरह बताएंगे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ ये हो सकते हैं बट नॉट 100% एक्यूरेट, ओके। तो डिफरेंस जो एक्स क्रोमोसोम एंड जो एक्स बियरिंग अल्टीमेटली स्पर्म होते हैं एंड वाई बियरिंग जो स्पर्म होती है दोनों की जो स्विमिंग जो होती है एबिलिटी वो दोनों की अलग अलग होती है, ओके। एंड दैट्स वाई बाय अंडरस्टैंडिंग देयर स्विमिंग एबिलिटी वी कैन अरेंज, ओके, we can know कि which kind of sperm we have to ejaculate or which kind of sperm we have to inseminate, okay। तो जो वेरियस काइंड ऑफ जो पर्टिकुलरली विट्रो टेक्निक आते हैं, इन विट्रो टेक्निक आते हैं जहाँ पे स्पर्म को निकाला जाता है, ओके। स्पर्म के जो सीमेन पर्टिकुलर मेल एक स्पेसिमेन को सीमेन एनालिसिस को जो देता है वहाँ से स्पर्म को निकाल लिया जाता है और उस स्पर्म में से अल्टीमेटली एक्स स्पर्म कौन सा है वाई स्पर्म कौन सा है दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद
जो कपल जो सेक्स को डिज़ायर करेगा उसके अनुसार वो सेक्स को अल्टीमेटली वहाँ पे वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करता है। ओके, दैट इज कम अंडर द इन विट्रो टेक्निक। ओके, जहाँ पे हम एसिस्टेड रिप्रोड्यूक्टिव टेक्निक बोलते हैं, ART जो टेक्निक्स होते हैं उनमें इन विट्रो टेक्निक आता है, उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आता है। ओके, तो उस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में से क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर स्पर्म होता है ना, उस वो कौन सा स्पर्म है, वाई बियरिंग स्पर्म है या फिर एक्स बियरिंग स्पर्म है, दोनों को फाइंड आउट करके हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर सकते हैं इनटू द फीमेल। ओके, एंड दैट्स वाई वहाँ पे जो देयर आर सम पॉसिबिलिटी में कम की डिजायर्ड सेक्स के अनुसार अल्टीमेटली बेबी हो सकता है। ओके, तो डिफरेंट स्पीड ऑफ द माइग्रेशन ऑफ स्पर्म। ओके, तो अल्टीमेटली वाई बियरिंग जो स्पर्म होती है उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, दे मूव फास्टर देन एक्स बियरिंग स्पर्म। ओके, दे मूव फास्टर एज वाई एज हैविंग एज स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम। ओके, तो अल्टीमेटली उनके पर्टिकुलरली माइग्रेशन ऑफ स्पर्म के पता करने पे भी या फिर बाय नोइंग द माइग्रेशन ऑफ द स्पर्म। ओके, डिफरेंस इन द अपीयरिंग ऑफ द एक्स एंड वाई बियरिंग स्पर्म। ओके, तो ये मार्फोलॉजिकली नॉट मार्फोलॉजिकली माइक्रोस्कोपिकली हमें फाइंड आउट करना है कि अल्टीमेटली जो उनका अपीयरेंस है एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम जो होता है थोड़ा सा लॉन्गर होता है, वाई वाला क्रोमोसोम जो है थोड़ा सा शॉर्टर होता है। तो माइक्रोस्कोपिकली वी कैन रूल आउट कि ये एक्स क्रोमोसोम है कि वाई क्रोमोसोम है। ओके, then the y bearing sperm are long and thin while x bearing sperm are short and thick। okay, ये जैसे इनका अपीयरेंस बताया गया है। डिफरेंस इन द DNA कंटेंट ऑफ द x एंड y bearing sperm, the DNA content is 2.8% more in x bearing sperm than a y bearing sperm। okay, तो अल्टीमेटली यहाँ पे what you have to remember that nothing but thus the use of selected sperm sample in the artificial insemination may produce a baby of desired sex। okay, अगेन यहाँ पे कुछ मेथड वगैरह बताए गए हैं। देयर इज ऑल्सो अ क्लेम दैट अ कपल कैन चूज द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड इफ दे कैन मैनेज द फॉलोइंग थिंग। ओके, what they have to manage for the desired sex, the sexual intercourse is done on the day of ovulation। ओके, तो ओवुलेशन कब होता है, जब एक पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल का यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये देखिए काउंटेड बैकवर्डली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, एज मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट्स। ओके, तो उस पर्टिकुलरली मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही उसका सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे ही उसका सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, यू हैव टू कंसिडर दैट फर्स्ट डे। ओके, यू हैव टू कंसिडर द फर्स्ट डे। ओके, तो अल्टीमेटली जैसे कि कोई अगर फीमेल है, ओके, अगर सपोज टू डेज डेट इज आवर 13 मार्च। ओके, 13 मार्च 2021। ओके, तो 13 मार्च, और अगर किसी का पर्टिकुलरली सपोज 13 अप्रैल में, ओके, 13 अप्रैल में अगर उसका सपोज उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आने वाला है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका अगर आने वाला है। ओके, तो अल्टीमेटली 13 अभी हमें पता नहीं कि उसका कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ओके, तो हम वी विल वेट फॉर दैट। ओके, तो 13 मार्च अगर है, अगर अभी 13 मार्च है तो उसका जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से उसका जो ब्लीडिंग फेस है, उसको ब्लीडिंग फेस कब से स्टार्ट होगा, दैट विल बी कंसिडर द फर्स्ट डे ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो वो उस पर्टिकुलर डे को, ओके, उसके जस्ट 14 डे बैक में, ओके, उसके 14 डे बैक में उसका जो हम ओवुलेटरी जो टाइम पीरियड है वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, तो इफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन ऑन द डे ऑफ द ओवुलेशन कब होने वाला है अगर हमें पता चल जाता है, तो उस पर्टिकुलरली ओवुलेशन पता चल जाने के बाद अगर वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर एक दिन में या फिर इमीडिएटली अगर होता है तो जो चांसेस होती है, ओके, मेल चाइल्ड होने की, वो पॉसिबिलिटी रहता है। ओके, इफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन आफ्टर द फीमेल टेक्स एज अ अल्कलाइन डाउच। ओके, क्योंकि जो डाउच मतलब होता है वॉशिंग ऑफ देयर वजाइना। ओके, तो अगर फीमेल उसकी जो वजाइना अगर वो वॉश करती है विथ अल्कलाइन डाउच, ओके, अल्कलाइन अगर वॉशिंग करती है उनके वजाइना की, तो अल्टीमेटली जो स्पर्म होता है वो फेवरेबल रहता है, द फेवरेबल कंडीशन, ओके, ऑफ वाई स्पर्म। ओके, यानी कि वाई बियरिंग स्पर्म जो रहते हैं वो अल्कलाइन कंडीशन होता है। ओके, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि वाई बियरिंग जो स्पर्म होगा ना वो हमारा क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा एक पर्टिकुलर स्पर्म से, क्योंकि अल्कलाइन डाउच कर दिया है तो जो एक्स बियरिंग जो स्पर्म होंगे दैट विल बी डाई, ओके, इन द अल्कलाइन और बाय डूइंग द अल्कलाइन डाउच, ओके, बाय डूइंग द अल्कलाइन वॉशिंग ऑफ द वजाइना, एंड दैट्स व्हाई वाई बियरिंग क्रोमोसोम विल गो in upper direction and ultimately will go up in the
uterine tract and they will meet with the ovum, okay, and the fertilization will come the result of the baby boy, okay. If the frequency of the sexual intercourse is reduced as much as possible, okay, then there is a chances of the desired sex, okay. ये देखिए यहाँ पे ओवुलेशन टाइम पीरियड बताया गया कैसे, हाउ डू यू हैव टू कैलकुलेट. द थर्ड क्वेश्चन इज नथिंग बट what is the safe period of the menstrual cycle, give the embryological anatomical basis, okay. safe period and unsafe period इनको भी पता होना चाहिए. the ovulation occur on the 14th day of menstrual cycle before the start of their next menstruation, okay. the ovulation occur on the 14th day of the menstrual cycle before the start of their next menstruation. एक और क्राइटेरिया रहता है कि आपको ओवुलेशन टाइम पीरियड पता कर सकते हो, जैसे कि जितना डे का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर सपोज किसी फीमेल का 35 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे है, ओके, 35 डे में से आपको 14 डे माइनस कर देना है, दैट विल बी योर द ओवुलेशन डे, ओके. ओवुलेशन डे को कैलकुलेट करने के लिए जितना भी डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से आपको 14 डे माइनस कर देना है, क्योंकि जो लास्ट वाला जो ल्यूटियल फेस होता है दैट इज ए फिक्स, ओके, ऑफ 14 डे, वो 14 डे का फिक्स फेस होता है, ओके. एंड दैट्स वाई बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस 14 डे यू कैन नो और यू कैन नो with the ovulation day, okay. तो 14 day minus with the menstrual cycle that will be your ovulation day, okay. तो प्लस माइनस 1 डे यानी कि 15th डे या फिर 13th डे वहाँ पे ओवुलेशन हो सकता है, ओके, प्लस माइनस 1 डे. जो भी 14th डे हम माइनस कर रहे हैं वो जो डे आएगा, सपोज 35 डे अगर मैं माइनस करूँगा 14 डे से, देन दैट विल बी द 21 डे, ओके. तो अगर 35 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर एक वुमेन है तो उसका जो ओवुलेशन होगा दैट विल बी ऑन 21st डे. तो 20 डे या फिर 20th डे या फिर 22nd डे, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22nd डे इस रेंज में वहाँ पे ओवुलेशन होने वाला है, ओके, प्लस माइनस 1 डे. द 14th डे इज काउंटेड बैकवर्डली फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके. अगेन द सेकेंड मेथड टू नो द ओवुलेशन टाइम पीरियड, ओके. तो यहाँ पे बताएगा कि द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज नॉट मोर देन 2 to 3 डे, ओके, एज आई सेड, एंड द वायबिलिटी ऑफ द ओवम इज ओनली फॉर 24 आवर, ओके. तो सेफ पीरियड क्या, कौन सा सेफ पीरियड रहेगा, अभी हमने पता कर लिया कि ओवुलेशन भी कब होने वाला है, ओके. बी कंफर्म कि ओवुलेशन इस टाइम पीरियड में ही होगा. कैसे होगा मैंने आपको बताया, बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर 14 डे विद देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके. और हमें पता है कि वायबिलिटी जो स्पर्म होती है और ओवम की दोनों की अल्टीमेटली कुछ नियर बाय सेम रहते हैं, ओके. तो कीपिंग ऑल दिस फैक्टर इन माइंड, इफ क्वाइटस, ओके, इज अवॉइडेड फॉर 1 वीक बिटवीन द 11th to 17th डे, ओके. अगर 11 to 17 डे मतलब जो भी टाइम पीरियड अगर होगा, 21st डे मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक पर्टिकुलर 35 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर एक वुमेन है, अगर उसका 21st डे अगर ओवुलेशन टाइम पीरियड होगा तो 21st डे, ओके, 21st डे, तो 21st डे उस पर्टिकुलर डे में उसके 2-3 दिन पहले और उसके 2-3 दिन बाद, ओके, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली अ वीक, ओके. तो 21st डे यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, ओके. दिस इज नथिंग बट योर सेफ पीरियड, ओके. ये जो वीक है फ्रॉम द डे ऑफ 17th या 18th, ओके, टिल 23rd डे, ओके, क्योंकि जो स्पर्म रहेगा वो 3 डे तक अलाइव रहने वाला है, ओके. तो अगर ओवुलेशन जैसे हुआ और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर स्पर्म जाता है तो 2 to 3 डे अगर वो मतलब वो रहेगा ही, ओके. तो 21st डे को ओवुलेशन होने वाला है, तो 3 डे अगर अलाइव रहेगा तो 25th डे या फिर 24th डे तक अगर वो फीमेल अवॉइड करेगी सेक्सुअल इंटरकोर्स को, तो दैट विल बी कंसिडर द सेफ पीरियड, ओके. देन फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट give the embryological basis of the high incidence of the chromosomal abnormalities in the offspring of women who marry late, okay. अल्टीमेटली यहाँ पे जो ये रीज़न बताया गया ना, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट, ओके, इज द ड्यू टू नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्यूरिंग द म्योसिस 1 एंड द म्योसिस 2, ओके. तो म्योसिस 1 एंड म्योसिस जो 2 डिवीजन होता है ड्यूरिंग देयर गैमेटोजेनेसिस, ओके. तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो मोस्टली जो बताया गया है वो ओवोजेनेसिस के बारे में बताया गया, ओके. स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देर इज़ अ चांसेस, ओके, देर में भी जो चांसेस कि जो अल्टीमेटली जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का जो रिडक्शन हो रहा है, ओके, ड्यूरिंग देयर म्योसिस 1 एंड द म्योसिस 2 में रिडक्शन नहीं होता है, बट उस पर्टिकुलर में भी अगर म्योसिस 1 से अगर म्योसिस 2 में अगर वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अगर मेंटेन नहीं रहते हैं ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन, ओके, तो वहाँ पे जो सेल होंगे दैट विल बी ऑफ
मतलब जो उनका क्रोमोसोम नंबर होगा वो प्रॉपर नहीं रहेगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए, द प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी ऑफ प्राइमरी ओवोसाइट्स मे बी द रीजन फॉर द हाई इंसिडेंस ऑफ द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज इन द ऑफस्प्रिंग। ओके, जो लेट मैरिज जो वुमेन होती हैं उनका जो प्राइमरी ओवोसाइट होता है, ओके, वो अल्टीमेटली बहुत ही मतलब ओल्ड का हो जाता है एंड दैट लूजेज देयर मतलब पोटेंशियल। ओके, दे लूजेज देयर पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली दैट्स वाई देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ओके, ड्यू टू द एज, ओके, ड्यू टू द high age, okay, high age of the female, okay, then ultimately older women यहाँ पे बोला है high age of women, remembering the primary oocytes are formed by the 5th month of the intrauterine life, okay, primary oocyte जो होता है ultimately वो 5th month of the uterine life से वो ultimately मतलब वो वहाँ तक रहता है। ओके, तो जैसे कि यू ऑल नो वेरी वेल कि जो पर्टिकुलर फीमेल गर्ल जो जब बॉर्न होती है, ओके, तो उस पर्टिकुलर बॉर्न पीरियड से, ओके, उसका कोई भी सेल वहाँ पे डिवाइड वगैरह नहीं होता है। ओके, हमारे मेल में, ओके, यानी कि मेल में अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है कि स्पर्मेटोगोनियम, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम टिल द डेथ ऑफ अ मैन, ओके, वहाँ पे हो सकते हैं, बट एक फीमेल में एक फिक्स टाइम पीरियड बताया गया है कि एक फिक्स नंबर ऑफ सेल बताया गया है कि इतने ही सेल रहेंगे, इतना फॉलिकल मैच्योर होगा ड्यूरिंग देयर पर्टिकुलर लाइफ साइकिल, ओके, ड्यूरिंग देयर पर्टिकुलर फीमेल फेस। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 फॉलिकल जो होते हैं वो रिमेन रहते हैं, यानी कि 14,000 सेल जो होते हैं जैसी एक फीमेल बॉर्न होती है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यानी कि उसके ओवरीज में रहते हैं। ओके, एंड दिस जो सेल्स हैं वो सेल्स अल्टीमेटली प्राइमरी ओवोसाइट्स में, देन प्राइमरी ओवोसाइट्स अल्टीमेटली सेकेंडरी ओवोसाइट्स में टर्न होता है एज प्यूबरिटी अटेंड। ओके, तो जो प्राइमरी ओवोसाइट्स का जो फेस है ना, वो फर्स्ट जो ये देखिए, रिमेंबरिंग द प्राइमरी ओवोसाइट्स आर फॉर्म बाय द 5th मंथ ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ओके, एंड दिस जो प्राइमरी ओवोसाइट्स है वो हमारा 5th मंथ ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ से स्टार्ट हो जाता है। The primary oocyte enter the process of the first meiotic division before the birth, okay, and but this division is arrested till puberty. Okay, at puberty the primary oocytes reassumes first meiotic division which is complete just after the ovulation. Okay, जो उसका सेकेंडरी oocyte होता है it enter in the first meiotic division at the time of ovulation but get completed is if it is fertilized with a sperm. Okay, otherwise वहाँ पे जो ओवम होता है अनफर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है वो ब्लीडिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ओके, द ट्राइसोमी द डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन ऑफस्प्रिंग, ओके, बॉर्न टू वुमेन ओल्डर दैन 35 ईयर। ओके, तो 35 ईयर की अगर वुमेन अगर वहाँ पे मतलब वो डिलीवर वगैरह जो वहाँ पे अगर चाइल्ड को करती है तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी विद द चाइल्ड हैविंग ट्राइसोमी। ओके, दैट इज नथिंग बट अ डाउन सिंड्रोम। ओके, जिनमें क्या होता है सोमेटिक जो क्रोमोसोम होते हैं 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है अल्टीमेटली एक सेल में बढ़ जाता है। ओके, और वो उस बढ़ा हुआ सेल अल्टीमेटली फर्टिलाइज होता है हमारे एक नॉर्मल स्पर्म से, और बाद में जो रिजल्ट होता है वो ट्राइसोमी में यानी कि डाउन सिंड्रोम में वो टर्न होता है। ओके, ये जो यहाँ पे 5th क्वेश्चन का जो आंसर है कि कैन द ऑफस्प्रिंग ऑफ मेन हु मैरिड लेट बी अफेक्टेड, तो रीज़न लिखा गया है येस इट इज़ अ पॉसिबल कि अगर लेट मैन अगर रहेगा, लेट एज का अगर मैन है तो उसका जो चाइल्ड होगा वो अफेक्टेड होगा बिकॉज एक्रेंड्रोप्लेजिया एक पर्टिकुलरली कंजेनाइटल स्केलेटल अनोमली है। ओके, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ द एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन एट द एपिफाइजल प्लेट। ओके, उनके जो बोन जो होते हैं उनका जो ऑसिफिकेशन जो होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है उनके कंजेनाइटल यानी कि उनके फीटल एज में ही अल्टीमेटली क्या होते हैं वो मतलब वो ज्वाइंट हो जाते हैं, उनका जो ओसिफिकेशन सेंटर होता है वो दे गेट ओसिफाइड। ओके, और आफ्टर द बर्थ भी वो क्या होते हैं अगर ओसिफिकेशन अगर नहीं हुआ रहेगा तो ओसिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट उनके फीटल पीरियड में स्टार्ट हो जाता है एंड एज द बर्थ डिलीवर्ड, ओके, एज द बेबी चाइल्ड गेट डिलीवर वहाँ पे भी क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम पीरियड, ओके, आफ्टर सम टाइम जो ऑसिफिकेशन सेंटर होता है दे गेट ओसिफाइड एंड द चाइल्ड जो होता है वो शॉर्ट स्टेचर का होता है। ओके, वो मतलब वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं एक्रेंड्रोप्लेजिया बोलते हैं, जो कि कंजेनाइटल स्केलेटल एनोमली है। ओके,
तो ossification are the epiphyseal plate particularly of a long bone during the fetal life they get fused, okay, is associated with the paternal age. The age achondroplasia is a common cause of the dwarfism, okay, जहाँ पे shortness of the stature रहता है. तो ultimately here are the some clinical problems, okay, and the clinical problem solutions and the some particularly MCQ type of question I have discussed here, okay. If you have any kind of query you can ask me in comment box. Thank you.